start with Aniket to give us an understanding on what are the legal loopholes which Sanjay Raut could really extract at this point, as it's very likely that he could be arrested. He faces that threat at this moment. Aniket, any word on if Sanjay Raut will be let off today? That's the speculation that he could be arrested in just moments from now. Navira, I would not get into the realm and spectrum of speculation. But let me tell you, under Section 19 of the PMLA Act, of the Money Laundering Act, it categorically confers power to particular designated officers of Enforcement Directorate to effect an arrest of a person who is charged with an offence against whom an ECR is registered, provided they find reasonable grounds to believe that he is involved in the crime. And very recently, Supreme Court has said very categorically that Section 19 is a constitutional provision. It is within the mandate of law. There is nothing unconstitutional in it. So therefore, the Act itself within itself provides safeguards while effecting arrest. And if they believe that there are reasonable grounds to see that he is involved in the crime, they can make that arrest. Right. And now, in the domain of investigating agency, depending upon what material and evidence they gather against him. For now, what we understand is the ED is very suspicious on the links between Praveen Raut and Sanjay Raut. Praveen Raut, the construction company that built apartments in that land, that piece of land where that chawl was present. And most of those apartments were never given to those true heirs, those residents who were living in that chawl. They did not even get the benefit of receiving those apartments that they were promised. Now, that builder and Sanjay Raut has had some connection with money or some loan that was transferred to Sanjay Raut's wife. That's more or less prima facie evidence that the ED is working on. But at this point, Shiv Sena says that this is just a bid to try and drag Sanjay Raut into this case where he has no involvement. They claim that he is innocent, and this is a way to muscle down opposition's voice. I'd like to ask our Shiv Sena spokesperson here, Mr. Dubey, how would you look at this? It's a corruption allegation. We're not talking about another agency investigating. We're talking about the central agency, the Enforcement Directorate, investigating on money laundering allegations to the tune of 1,000 odd crores. This is not something to be taken lightly. But with all that pressure that the Shiv Sena workers are posing on the Enforcement Directorate, do you believe this will really help your cause? नबीला जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं कि संजय राउत जी ऐसे किसी घोटाले में इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं पत्रा वाला चाल कहाँ है मुझे पता नहीं, मैं कभी वहां गया नहीं। तो ये पहले घोटाले वाला विषय समाप्त करिए, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन जरूर आया है 2010 और 2012 के बीच में, ठीक है, उसके लिए ईडी इंक्वायरी करे, ईडी कार्रवाई करे। उन्होंने बोला कि पत्रा चाल कहाँ है वो पता ही नहीं। जी उन्होंने कहा। अब सुनिए, महत्वपूर्ण बात सुनिए। वो मुंबई का ही है ना, मुंबई से ही है आप। अरे भाई, लेकिन घोटाले के बारे में नहीं पता ना। पत्रा वाला चाल का क्या घोटाला है, कौन कर रहा है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व है, ये नहीं पता। तो ये विषय यहाँ समाप्त होता है। अब दूसरे महत्वपूर्ण विषय पे आइए। संजय राउत जी को 3 समन्स आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। वो पहले समन्स में जाते हैं, 10 घंटा पूछताछ होती है, पूरी हर सवाल का जवाब देते हैं। हो सकता है कि ईडी सहमत नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, ईडी वापस आना चाहती, कोई बात नहीं। ईडी 2 समन्स भेजती है, उसका जवाब क्या लिखते हैं कि देखिए पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मैं एक जिम्मेदार, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ लोगों के महत्वपूर्ण विषय हैं जिसका सवाल जवाब वहां देना होता है, आप मुझे 7 अगस्त तक की मोहलत दे दीजिए। मैं देश छोड़कर भाग नहीं रहा, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई बहुत बड़े 5,000 करोड़ के केसेस नहीं चल रहे हैं देश में, तो आप मुझे थोड़ा राहत दीजिए, मैं आपको सहयोग करूंगा। लेकिन आज भी जब ईडी 7 बजे आई तो संजय राउत जी ने पहला उनको यही कहा, अरे आप मुझे बुला लेते, मुझे क्या पता कि आप लोग मेरे पास आ जाएं। खैर कोई बात नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब जब ईडी को रेड करना होता है वो थोड़ी ना बोल के आते हैं। नहीं, वही रेड। अब ईडी के रेड पे आता हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। ईडी रेड करे, ईडी एक भारत सरकार की इंडिपेंडेंट संस्था, ऐसा बीजेपी कह रही है, बहुत अच्छी बात। लेकिन ईडी सिर्फ संजय राउत जी के यहाँ रेड क्यों करती? एकनाथ शिंदे जी के खेमे में 8 ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, केसेस कंटिन्यू हैं। सुबह 7 बजे हमने आटो के नाम बोल दीजिए, आप नाम बोल दीजिए, हम ले रहे हैं अपने टीवी पे, आप नाम बोल दीजिए वो 8 लोगों के। मैं किसी का नाम लेकर उन्हें बदनाम नहीं करूंगा, पहली बात। हमारे शिष्टाचार और संस्कार भी नहीं है, सबको पता है, आपको भी पता है, आपकी मीडिया, आपके लोग, सबको पता है।
ईडी उनके यहां 7 बजे सुबह नहीं आती, कोई बात नहीं। बीजेपी में बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस से आए हैं, इंपोर्ट होते हैं जो नेता, उनके यहां ईडी कार्रवाई सुबह 7 बजे नहीं करती। ये सौतेला व्यवहार क्यों, ये दो आंखें क्यों? ठीक है, संजय राउत जी ने भ्रष्टाचार किया है तो पुलिस पकड़ेगी, कानून में जाएगा, उस पर लड़ाई लड़ेगी, निर्दोष होंगे छूट जाएंगे, आरोपी होंगे पकड़े जाएंगे। यह विषय एक पल के लिए साइड छोड़ी। यहां सवाल है ईडी की विश्वसनीयता की, कि विपक्ष और विरोधक जो भारत में बीजेपी को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनके ऊपर प्रहार क्यों? 2019 से जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, संजय राउत टारगेट पर है। आदरणीय किरीट सोमैया जी चीख चीख कर 2.5 साल से कह रहे हैं कि संजय राउत जो है वो जेल जाएंगे, ईडी उन पर कार्रवाई करेगी। अरे भाई, ईडी एक स्वायत्त संस्था है जिनका फोन नंबर भी शायद आपके पास नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं होगा, लेकिन ईडी 24 घंटे बाद कार्रवाई करती है, ये नेताओं को पता चल जाता है। तो अब यहां पर यही है कि अगर पूरे देश में आप एक ईडी की महानता दिखाना चाहते हैं तो कल सुबह 7 बजे बीजेपी के जितने नेताओं पर ईडी के केसेस चल रहे हैं वहां ईडी की रेड हो, 10-10, 20-20 घंटे की पूछताछ हो, सबको समन्स भेजे जाए, सबका स्टेटमेंट लिया जाए, जो गिरफ्तार किए जा सकते गिरफ्तार करें, तब मैं ताली बजाऊंगा नबीला जी। अगर ईडी ने कर लिया वो, अगर ईडी ने कर लिया वो, क्या वो संजय राउत का पाप धुल जाएगा उसमें? नहीं, अगर क्राइम किया है तो क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन तो होना है। नहीं, संजय राउत जी का जो कॉन्फिडेंस आपने देखा वो आपको कोई पाप किया हुआ व्यक्ति लग रहा है?